اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے آپ کی روحوں کے ساتھ رہے، آمین۔ آج جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی اور خدا نے یہ توفیق بخشی تاکہ اس جگہ پر کھڑا ہو کر وہ باتیں جو خدا چاہتا ہے وہ آپ سے ڈسکس کی جائیں، اور اس کی اتنی ضرورت ہے ہر ایک چرچ میں اور ہر ایک مسیحی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عہد کے تعلق سے، کس کے تعلق سے جی؟ عہد کے تعلق سے اکثر بات عہد کی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں نامے کی بابت۔ بات کس کی ہوتی ہے جی؟ عہد کی، تو سمجھتے کیا ہیں؟ عہد نامہ۔ اور عہد میں اور عہد نامے میں فرق ہے۔ عہد کہتے ہیں دو شخصوں میں ایگریمنٹ، دو شخصوں کی ڈیل، ایک خدا اور دوسرا انسان، اور جیسا عہد ہوگا ویسی تعلیم ہوگی، جیسا عہد ہوگا ویسی دعائیں ہوں گی، جیسا عہد ہوگا ویسی حمد و ثنا ہوگی، اور جیسا عہد ہوگا ویسا ہی اجر ہوگا، اور جیسا عہد ہوگا ویسی برکت ہوگی، جیسا عہد ہوگا ویسی شریعت ہوگی، جیسا عہد ہوگا ویسے وعدے ہوں گے، جیسا عہد ہوگا ویسے ہی خدمت اور کہانت ہوگی۔ تو بات یہ ہے، ہمیں جاننا پڑے گا ہمارا عہد کون سا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی جاننا ہے شریعت سے پہلے والا عہد کون سا تھا اور شریعت والا عہد کون سا تھا۔ تو آپ کا عہد کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا عہد کیا ہے۔ تو جب عہد معلوم ہوگا تو ہم اپنی برکت کو بھی پہچان سکیں گے۔ شریعت سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، شریعت سے پہلے بھی لوگ گیت گاتے تھے، شریعت سے پہلے بھی قربانیاں خدا کے حضور لے کر جاتے تھے، اور شریعت سے پہلے دے یکی بھی دی جاتی تھی، شریعت سے پہلے کاہن بھی موجود تھے۔ تو ہم پہلی بات سیکھیں گے پہلے عہد کا نشان، پھر سیکھیں گے دوسرے عہد کا نشان، پھر سیکھیں گے تیسرے عہد کا نشان، پھر سیکھیں گے ہمارے عہد کا نشان۔ ایک چھوٹا سوال دینا چاہتا ہوں آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے، پہلے عہد کا نشان کیا ہے؟ عہد کا معلوم ہونا ضروری ہے جی۔ عہد خدا نے کیا پہلے لوگوں سے، شریعت سے پہلے جو لوگ تھے ان سے خدا نے کیا کیا جی؟ عہد۔ اور جب جس سے عہد کیا گیا جو اس عہد کا درمیانی تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو عہد خدا کرتا تھا، اور پہلے عہد کا درمیانی جو تھا وہ نوح تھا۔ نوح کے گھرانے کے ساتھ عہد باندھا اور انہیں برکت دی اور ان کو کہا بڑھو، اور پھر انہیں شریعت بھی دی ان کے عہد کے مطابق، ان کے عہد کے مطابق کیا دی جی؟ برکت بھی دی اور شریعت بھی دی۔ اور نوح جو تھا اس کی منادی کا جو آغاز تھا، اس کی منادی کا آغاز توبہ نہیں تھی، اس کی منادی میں ہمیں راست بازی کی تعلیم
نظر آتی ہے۔ اور لکھا نوح اپنے دور کے لوگوں میں راست باز تھا، کیونکہ راست بازی اس عہد میں بھی موجود تھی اور اس میں بادشاہی بھی موجود تھی۔ اب اس عہد کا جو نشان تھا، میرے ساتھ نکالیے۔ بچوں نے بائبل لے کر آئے ہیں، اس لیے مجھے مزہ آئے گا بائبل سنانے کا۔ بچے تو بیدار لگتے ہیں، بھائی بھی بیدار ہی ہے، لوگوں کو بائبل ہے تو چلو جنہاں کو نہیں ہے انہوں نے معافی دیتی جائے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 9، نوح کے ساتھ جو عہد باندھا گیا۔ اگر ایک میک جس کے پاس ہے، چاہیے بیٹی کے پاس ہے، بیٹی آپ 13ویں آیت پڑھیے ذرا، جس کے پاس میک ہے جی۔ 9 باب کی 13ویں آیت۔ اگر ان کو ایک میک دے دیں، پھر اگر آپ نہیں تلاوت کر سکتے تو ایک میک ان کو دے دیں۔ میں اپنی کمان کو وعدت سے رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ جی، نوح کے عہد کا نشان کیا تھا جی؟ کمان۔ میرے اور تیرے عہد میں جو نشان ہے وہ کیا ہے جی؟ کمان۔ اب اس کے عہد کا نشان کیا تھا جی؟ کمان۔ اب ان کو جب تعلیم دی گئی، یہ پہلے عہد والوں کو، اور یہ لوگ اپنی بہن سے بھی شادی کر لیتے تھے، اور اس عہد کو شریعت سے پہلے والا عہد بھی بولا جاتا ہے۔ اسے حمورابی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ میرے ساتھ رہیے، کیا کہتے ہیں جی؟ حمورابی۔ یہ ایک بادشاہ تھا جس نے ایک ضابطہ حیات بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ، قانون بنایا۔ خدا نے اس قانون کو اور اس شریعت کو اوکے کیا، خدا نے وہ شریعت دی اور کیا کہا؟ تمام۔ آکاش بھائی پہلی آیت سے پڑھیے 9 باب کی۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ ان کو کیا دی جی؟ برکت دی۔ کس کے مطابق؟ ان کے عہد کے مطابق۔ کیا دی جی؟ برکت۔ اب بندہ کہے میں نوح کے عہد کا ہوں، آپ نوح کے عہد کے ہیں؟ آپ کی بائبل میں ہے جی؟ کیا آپ نوح کے عہد کے ہیں؟ ذرا بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا بھی آپ سن رہے ہیں۔ مشکل ہو گیا ہے نا جی؟ آپ نوح کے عہد کے نہیں، آپ کا درمیانی نوح نہیں، آپ کا درمیانی یسوع مسیح، موسوی شریعت کا درمیانی موسیٰ، اور نوح کی شریعت کے اور نوح کے لوگوں کا درمیانی کون ہے؟ نوح۔ اور اس کا نشان کیا ہے جی؟ کمان۔ ان کے عہد کا نشان کیا ہے؟ کمان۔ اب نوح جو تھا، اس کی زندگی میں درمیانی تو ہے، ملانے والا تو ہے، کیا یہ ہمیں خدا سے ملا سکا؟ نو، وہ رسائی نہیں۔ منادی کی اپنے عہد کے مطابق، درست منادی کی اپنے عہد کے مطابق، لوگوں کو برکت بھی دلائی اپنے عہد کی۔ اب خدا نے ان کو کیا دی جی؟ برکت دی۔ برکت کیا دی؟ بڑھو، بڑھ جاؤ، زمین کو معمور کرو، بڑھاؤ۔ یہ شادیاں کن سے کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی گھرانہ ہے جی، 8 جانے ہیں جی، ایک جگہ پر تقریباً 7 اور 8 جانے، اور ایک جگہ پر 8 ہی لکھی ہوئی ہیں۔ 7 جب تقریباً لگ جاتا ہے نا، اس کا مطلب 8 یا 7 دونوں ہی لفظ بائبل میں موجود ہیں۔ اور برکت دی، یہ ایک گھرانہ ہے۔ یہ اس نے شادی کیسے کر لی؟ شادیاں کن سے کی؟ یہ تو بٹی نہیں ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو سوترے نہیں ڈھونڈ رہے تھے،
अब तो इनकी एक ही ज़ात है, इनके अहद में एक ही ज़ात है, आपस में क्या कर रहे हैं जी। और इससे पहले आदम का निस्बनामा उठाएं, जो बाग से घराना आया वो भी अपनी बहनों से शादी करते थे, क्योंकि वो भी अहद हमारे लिए नहीं। अब इनको एक लिस्ट दी गई है जी, मसला बन जाएगा। मौसवी शरीयत की लिस्ट फ़र्क है और ये लिस्ट फ़र्क है जी। आगे पढ़िए ज़रा। और उनको कहा कि बराबर हो और बढ़ो और जमीन को मरमूर करो, और उस जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा लुत्फ होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई, हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा जी। तमाम मछलियाँ, अब शरीयत में ऐसा नहीं है जी, शरीयत में तमाम मछलियाँ खाने के लिए नहीं दी गई। वो मछली खाना जिसका छिलका उतरता हो। तो यहाँ क्या लिखा है इस अहद में, क्या है, तमाम मछलियाँ खाना और चलता फिरता जानदार तेरे खाने के लिए होगा, और कीड़े मकोड़े तमाम खाने के लिए हरी सब्जी की तरह तुझे दे दिए। अब ये कीड़े भी खाते थे। इससे मालूम होता ये अहद आपका नहीं है। आप कीड़े खाते हैं जी? आपकी बाइबल में लिखा तो आप क्यों नहीं खाते? लिखा ना, तमाम कीड़े खाना, तमाम मछलियां खाना और तमाम चलता फिरता जानदार तेरे खाने के लिए होगा। गधा छिपाया है जी। अब तो मानना पड़ेगा ये खाते, आप क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपका अहद नहीं। वो अपने अहद में दुरुस्त है, वो अपने अहद में ठीक है। और तमाम परिंदे खाना, और ये अहद कहाँ तक रहा? मूसवी शरीयत तक। कहाँ तक जी? और ये गीत भी गाते थे। आपको पता है ये कौन से गीत गाते थे? क्या नाम लेकर गीत गाते थे? हमने तो मरुंडा बनाया हुआ है, मुझे ये डर नहीं होता मुझे बाद में ना बुलाएंगे। मुझे ये होता है जो मुझे मौका दिया गया है सच्चाई के साथ हाथ बांध कर। गीत ये भी गाते थे, गीत हम भी गाते हैं। हमें ये नहीं पता होता हम अपने अहद के गा रहे हैं या किसी के अहद के गा रहे हैं। ये गीत भी गाते थे, दुआएं भी करते थे। हम भी दुआएं करते हैं, वो भी दुआएं करते हैं। शरीयत में भी दुआएं थी, फजल में दुआएं है या नहीं? गीत है या नहीं? तलीम है या नहीं? ज़ाब्ता हयात है या नहीं? वादे है या नहीं? बरकत है या नहीं? अब इस अहद की जो बरकत थी ये मादा चीज़ों के साथ थी। ये मादा चीज़ें पत्थर की चीज़ों के साथ, मट्टी की चीज़ों के साथ, इनकी रसाई भी मट्टी की चीज़ों के साथ थी। अब इनकी बादशाही भी थी, इन्होंने मुल्क बनाए। इनका मुल्क बनाने का तरीका फ़र्क था, क्योंकि इन्होंने अपने अहद के मुताबिक बनाना था। कोई मुझे बता सकता है इनके अहद में कैसे मुल्क बनता था और मुल्क कैसे बनते हैं? पादी साहब ने मुझे बताया पढ़ी लिखी मेरी कलीसिया है, बड़ी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बेटे पढ़े लिखे हैं। तो मैं उस वक्त से खुदा को कह रहा था भाई पढ़ा लिखा कलाम देना। तो बात यह है मुल्क बनते हैं कब्जे के साथ। आपने यहां क्या किया था? कब्जा। जो इससे पहले थे जिन्होंने 200 साल हुकूमत की, उसने क्या किया था? कब्जा। तो इनके अहद में कब्जा किया जाता था। खुदा कहता था जाओ, ये नूह तक गया है जी,
नूह का अहद इब्राहिम तक गया है। तो इब्राहिम भी कैसे करता था? कब्ज़ा ही करते थे, फतह करते थे, लोगों को मार देते थे, मार कर जनाबे वाला मुल्क पर कब्ज़ा कर लेते थे तो मुल्क उनका होता था। कातल बन जाते थे, खुदा फिर भी बरकत देता था। इनका बादशाही का निज़ाम जो था इस सियारे का था, इनकी बादशाही इस सियारे की थी, इससे आगे इनकी बादशाही नहीं थी। लोगों को मार भी देते थे, कत्ल भी, बच्चों को मारा इन्होंने औरतों को मारा, इन्होंने मर्दों को मारा, बल्कि यहाँ तक इब्राहिम को वो बादशाह कहने लगा मुझे भी छोड़ दे और मेरी औरतों को भी छोड़ दे, जितना खजाना मेरे पास है तू ले ले। ताकि इब्राहिम ने कहा ऐ बादशाह तू ये ना कहे मुझे, इब्राहिम को मैंने दौलतमंद किया। इनके अहद में ये था, इनकी बरकत ये भी थी, ये बहन से शादी कर लेते थे। इब्राहिम ने अपनी बहन से शादी की। इब्राहिम के बाप की 2 बीवियां थी, एक से इब्राहिम, एक से सारा। 2 बहन थी और उसने कहा भी है तू मेरी बहन है। तो बादशाह ने कहा तूने मुझसे क्यों झूठ बोला? उसने नबी होकर ईमानदारों का बाप है, वो झूठ बोलेगा? उसने ठीक कहा। इनके अहद में हर एक के साथ शादी कर लेते थे, इनके अहद में लौंडी के साथ भी शादी कर लेते थे, लौंडी से औलाद भी ले लेते थे और बीवी भी कहती थी। बुआ जी बीवी खुद कह रही है इब्राहिम दी बीवी, बड़ी काबिल गौर गल है जी। उसने क्या, किसके पास जा? हाजरा के पास जा, मेरे लिए उसमें से औलाद पैदा कर। असी अपने अह च कह सकांगे? ना ना ना, ऐ पादी तो कोलों दी लंघ जाए तो भावें इशू बन जाए। तो वो खुद कहती उनके अहद में था, और उनके अहद में ये भी था लौंडी से औलाद ली जाए, अगर दिल चाहे तो घर रखो, नहीं तो घर से निकाल दो। घर रहेगा तो गुलाम होगा, घर से बाहर चला जाएगा तो आज़ाद होगा। ये इनके अहद की तालीम थी। और इनके अहद में खाने पीने की कोई तमीज़ नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ खाते थे। ये क्या करते थे जी? और ये अहद कहाँ तक था जी? इब्राहिम तक। ये अहद महदूद रहा। ये अहद क्या रहा जी? आपने ये बात याद रखनी है। अहद क्या रहा जी? महदूद। इसकी बादशाही क्या थी? महदूद। इसके वादे क्या थे? महदूद। कहाँ तक महदूद थे? जहाँ तक ये सियारा है, जहाँ तक मादा चीज़ें हैं। इसके सारे वादे किसके साथ थे? मादा के साथ। भेड़ें बढ़ रही हैं, ज़मीन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। अगर हमारे किसी के पास ज़्यादा जगह हो तो कहते से बरकत मिल गई। ये तो उनके पास भी थी, इनके मौजज़े भी होते थे। हमारा चर्च या हम मौजज़े कर ले, हम कहते हमारे पास बरकत है। ये भी अहद वाले मौजज़े करते थे। ये भी बरकत इनके पास थी, मौजे भी करते थे, खुराक की कमी भी नहीं होती थी, माल डंगर दी भी कमी, कसरत देना। इन्नी बरकत चाचे दी ते भतीजे दी आपस च जगह दी वजह तो लड़ाई होगी, नौकरां दी वजह तो, कसरत दे नाल नौकर बरकत दी गई है मादा चीज़ों की। कसरत के साथ मादा चीज़ों की बरकत थी। टाइम को शार्ट रखते हुए इसको ज़रूर स्टडी करें, इस अहद को। इस अहद में आप बारीकी में जाए, मैं रुख दे रहा हूँ वरना दूसरे अहद रह जाएंगे। ये सारी बारीकियों में जाऊँगा जी, ठीक है जी। आपने ख़ुद इस बारीकियों में जाना है, आपके लिए ये पैगाम है, आपने बारीकियों में जाना है इस अहद के बारे में। इस अहद में गीत भी गाए जाते थे। कौन से गीत गाए जाते थे और कौन सी दुआ की जाती थी? एक हवाला पढ़ लें जी। पैदाइश 4 बाब। वैसे बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रही है ना जी? मुश्किल तो नहीं लग रही जी? 4 बाब की 26 आयत, पैदाइश 4 बाब की 26 आयत जी। कोई भी पढ़ दे।
पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनमुस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। उस वक्त से लोग क्या करने लगे? यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। कुर्बानियां भी लेकर जाते थे, किसी की कबूल होती थी, किसी की नहीं कबूल होती थी। कुर्बानियां भी, हदिये भी, गीत भी, ये बांसुरी बजाकर गीत गाते थे। किसके? यहोवा के। ये यहोवा के गीत गाने वाला गिरोह था। मुझे नहीं पता आप कौन सा गिरोह है। ये अहद में यहोवा के गीत, इनको यहोवा का नाम दिया गया। यहोवा का नाम लेकर इबादत करते थे। जब इब्राहिम ये सारे यहोवा मुहैया करेगा, उसने अपने पहाड़ का नाम रखा यहोवा यरी, जिसका मतलब है मुहैया करने वाला। जहाँ बड़ा मुहैया हुआ है, जहाँ बड़ा मुहैया हुआ है, इनका निशान फ़र्क है। अब इब्राहिम के अहद का निशान क्या था? उसके अहद का निशान फ़र्क है। उसके अहद का निशान खतना था। उसके अहद का निशान क्या था जी? खतना। उसके अहद का निशान क्या था जी? याद रखना है, क्या है जी? खतना। उसकी बरकत क्या थी? ज़मीन की। उसकी चीज़ें क्या थी? मादा चीज़ें। अच्छा, उसमें भी ईमानदार थे, क्योंकि ये तो शरीयत से पहले वाले लोग हैं। शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। इब्राहिम की बात लिखा, वो ईमान लाया और उसके हक में ये रास्तबाजी गिना गया। ईमान लाने से वो रास्तबाज बना। ईमान लाने से आप कैसे बने हैं? आप रास्तबाज कैसे बने? ईमान लाने से। उनके अहद में ईमान लाया जाता था, शरीयत में ईमान का कुछ वास्ता नहीं। तो जब मूसवी शरीयत आई तो सारी बरकत फ़र्क है। अगर तू मेरी इबादत करेगा तो तेरी रोटी और पानी पर और तेरे हाथ की मेहनत में और तेरे घर में किसी के सकात ना होगा, तेरे शहर में कोई भांच ना रहेगी और आसमान से मन बरसेगा, जूतियाँ नहीं टूटी, कपड़े नहीं फटे और 40 बरस तक बियाबान में मौजे भी देखते रहे, गहरी हजूरी भी देखते रहे। वो भी बरकत फ़र्क है। अब मूसवी शरीयत का दरमियानी कौन था? मूसा। मूसा के साथ अहद बांधा और मूसा के अहद का निशान क्या था? खतना। इसका सबूत दे देता हूँ। उसकी बीवी ने कहा, तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। उसने जब खुदा ने कहा मैं फ़िरौन के पलोठे मारूंगा, खुदा फरिश्ता जो है मूसा के पास आ गया। भाई मूसा के पास क्या लेने आ रहा है? मारना है। पलोठा पास किसके आ गया? मूसा के। क्यों? मूसा के पास क्या लेने आ रहा है? मारने तो फ़िरौन के पलोठे है, मूसा के पास रहा है, क्योंकि मूसा भी फ़िरौन है, क्योंकि मूसा पलोठा बेटा है फ़िरौन का, क्योंकि मूसा को ले पालक किया गया है, उसे लेकर पाला गया है। मूसा का मतलब ये भी निकाला फ़िरौन के लोगों ने, फ़िरौन के घराने ने, मूसा पानी से निकाला हुआ, मेरे देवता ने मुझे दिया है। मूसा का ये भी मतलब है नजात दिलाने वाला, नजात देने वाला नहीं, नजात दिलाने वाला। खुदा ने किसके साथ अहद बांधा? मूसा के साथ। अब मूसा की ज़िंदगी में मौत है, बड़ा नुक्स आ गया। खुदा तो कामिल है, खुदा तो दुरुस्त है, खुदा की ज़िंदगी में मौत नहीं। पहले बंदे से अहद बांधा, उसकी ज़िंदगी में भी मौत है। जम्मिया विच गुनाह दे मेरी माई। अब दूसरा बंदा, उसकी ज़िंदगी में भी मौत है। फिर तीसरा बंदा, उसकी ज़िंदगी में भी मौत है। इनका अहद। अब इनको क्या कहा गया? खरगोश खाना। बोलो बोलो। हुन बंदा कहे जी, मूसा का बंदा कहे, कलाम में लिखा है खरगोश नहीं खाना। हम और अब इब्राहिम वाला कहेगा भाई मैंने तो खरगोश खाना है। अब इसको टैली करो।
क्योंकि अहद फ़र्क है। अहद नामा क्या होता है? अहद तो मैंने बता दिया एग्रीमेंट, और नामा क्या है? आप कभी कोई शादी ब्याह पर गया है जी, दो सियाने बंदे बाहर बैठे होंगे जी, एक बुक पढ़ी होंगी है लाल कलर की, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखा ਹੁੰਦਾ नामा, भाई जो दिया जाए वो लिखा जाए, उसको कहते हैं नामा। अहद नामा, न्योंदरा नामा लाल रंग का होता था जी। अब तो दूसरी आ गई है ना कापियाँ, पहले आपने देखी होंगी जी, और लाल रंग दी लंबी जी, उस ते लिखा होंदा सी अहद शादी नामा। तो ऐसे ही अहद नामा, भाई जो अहद किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया, उसे लिखा जाए। नामा नहीं बदला, अहद बदला है। नामा वैसे का वैसा ही है, घास सूख जाएगा, फूल मर जाएगा, मेरा कलाम अब तक कायम रहेगा। मैं अहद की बात कर रहा हूँ, नामे की बात नहीं कर रहा। अब मूसा को कहा गया वो मछली खाना जिसका छिलका उतरता हो, जिसका ना उतरता हो उसे ना खाना। वो जानवर खाना जिसके पांव कटे हों और जानवर जगाली करता हो। परिंदों में ये खाना, चौपायों में ये खाना, और मछलियों में वो मछलियां खाना जिसका छिलका उतरता हो, जिसका छिलका ना उतरता हो उसे ना खाना। फिर कभी मौका मिला तो ये भी बताऊंगा क्यों नहीं खाना। तो बात ये है, उसका अहद फ़र्क है। अब वो ईद कैसे मनाता है? ईद, यहूदी ईद कैसे मनाता है? वो सूरज को देखेगा। इसका अहद कहाँ तक था? इसके 10 हुक्म कहाँ तक थे? मुझे ये बताओ, क्या 10 हुक्म निजात दिला सके? मैंने मुश्किल सवाल किया है, दिल को हिलाने वाला। क्या 10 हुक्म निजात दिला सके? नहीं। बंदा आया है, दौलतमंद है, अमीर है, कहता ए रब्बी, ए उस्ताद, मैं निजात पाना चाहता हूँ, मैं कामिल होना चाहता हूँ। एक बयान में कामिल लिखा, एक बयान में निजात लिखा, और एक बयान में लिखा ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। उसने कहा अगर ज़िंदगी पाना चाहता है, जो शरीयत में लिखा है वो कर। कहता माँ बाप की इज़्ज़त कर रहा हूँ, 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ, 10 के 10 हुक्म मान रहा हूँ। तो निजात मिल गई उसे? जिंदगी मिल गई? कामिल हो गया? नहीं। यीशु ने कहा तेरे लिए एक हुक्म और है। अब 10 हुक्मों में बात नहीं रह गई, बात बदल गई है। तेरे लिए एक हुक्म और है, तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे मुश्किल काम सी सारा कुछ किंज वेचिए। इत्थे ते खाशा ही नहीं मान। उन्हें कहा सारा कुछ वेच, तेरियां खाशां बड़ियां। यस्सू नूं किंज पता लग गया? यस्सू दी तो कोई डिस्कस ही नहीं हुई ना। यस्सू ने उन्होंने खाने ते बुलाया ना, वो यस्सू दे खाने ते गया ना यस्सू दे खाने ते गया। उन्होंने किस तरह पता लग गया दियां बड़ियां खाशां? क्योंकि उसकी पहली खाश तो ही पता चल गया सी। अक्सर बड़ियां दी खाश हुंदी मैनू दुआ च मौका लाजमी मिले। ये रूहानी नहीं होंदे, सोचते होने किहड़ी दुआ करांगा, ते जे ना दिता मौका तो नाराज़ हो गए। तां ही तो साडी मीटिंग लंबी हुंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ तो मौका देना हुंदा है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦੇ ਕਾਦੀ ਐ ਨੇਕ ਉਸਤਾਦ, ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਯਸੂ ने कहा क्यों कहता है नेक? वो तेरी वजह क्या है? तेरे अंदर सोच क्या है? क्यों नेक कहता है? यसू ने यह नहीं कहा मैं नेक नहीं। यसू कहता क्यों कहता है? इसकी वजह तो जानो। ये की साबित करना चाहता है? अपने आप को साबित करना चाहता सी नेक। अहद फ़र्क है। अब उस अहद का दरमियानी कौन था? मूसा। उसका निशान क्या था? खतना। खतना होता था तो शरीयत में बंदा शामिल, जो खतना नहीं करवाता था वो मूसवी शरीयत में कायम नहीं रह सकता था। उसका दुआ करने का तरीका फ़र्क था। उसका फ़र्क क्या था? उसका फ़र्क ये था, वो सर को क्या करता था?
डांप, आप क्यों नहीं डांपते? ये मर्दों ने नहीं डांपा, औरतों ने डांपना है, मर्द नहीं डांप रहे। शरीयत वाले डांपते थे। क्यों भाई? उसकी वजह क्या थी? उनका जलाल फर्क था, आपका जलाल फर्क है। उनका जलाल मिटने वाला, उनका जलाल कम होने वाला, ये आपको कहाँ से मिलेगा? दूसरा करंथियों 3 बाब ज़रूर घर जाकर स्टडी करना। दूसरा करंथियों 3 बाब। उनका जलाल कम होने वाला, उनका जलाल मिटने वाला। तो गीत और दुआ तो ये भी करते थे। इनको हुक्म मिला था बेफ़ायदा नाम नहीं लेना। शरीयत से पहले वाले यहोवा नाम लेते थे, और शरीयत में यहोवा नाम नहीं लिया जाता था। मुझे नहीं पता आप कौन से हैं। शरीयत में तो नाम नहीं लिया जाता था। शरीयत में उन्हें हुक्म मिला था, 10 हुक्मों में एक हुक्म है खुदा का बेफ़ायदा नाम। उन्होंने क्या, ऐसा ना शरीयत टूट जाए तो हम मुजरम हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उसके इवज़ में एक लफ्ज़ एदोनाई, जिसका मतलब था खुदावंद, जिसका मतलब देखा गया, यहोवा की जगह में ले आए। यहोवा नहीं बोलते थे, एदोनाई। लिखा यहोवा होता था, पढ़ा यहोवा जाता था, बोलते एदोनाई थे। जैसे नकरा, नकरे में ये असूल है, लिखा कुछ होता है भारत में तो बोला कुछ जाता है। तो वो इसी असूल से यहोवा नहीं बोलते थे। वो कहते थे पाक नाम है, मुकद्दस नाम है। हम तो यहूदी नहीं, हम यहोवा कहें या जो मर्जी कहें, उसका नाम अब तक। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यहोवा है, मेरा नाम अब तक यही रहेगा। दुआ भी करते थे, यहोवा कहकर दुआ नहीं करते थे, एदोनाई कहकर दुआ करते थे। गीत भी गाते थे। शरीयत में ऐसे भी गीत गाए जाते थे, अखियाँ चुकना मैवल मेरी मदद लई। कित्थों? ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਜ਼ਬੂਰ भी नहीं आਉਂदा। पहाड़ तो मूँह के हल किया जाता सी, अगे पिछे हो सकती सी दुआ जी? ना ना ना, ध्यान किसकी तरफ होगा जी? शरीयत में पहाड़ की तरफ। कुर्बानियाँ कहाँ लेकर जाएंगे? पहाड़ की तरफ। हैकल कहाँ थी? पहाड़ पर। तो आपकी हैकल कहाँ है? अखियाँ चुकना हाँ महवल पहाड़ा। बई मैं तो अखा चक के हैकल वाल वेखना, ये तो मेरी मदद आनी है। क्योंकि हैकल कित्थे सी? हजे सुलेमान दी हैकल नहीं बनी, उदो हैकल पहाड़ ते सी। वो अग लगी हुई है जी, धुआं निकलता पिया है, कोई चीज़ जलदी नहीं पई। उन्होंने क्या एक ही है, ऐ मूसा जूती स्टेज ते लेके आ जा। अज ते भाई माजरत ऐब जो ही नहीं किसी की करता। जिड्डा वड्डा पादरी ओडी जुत्ती उत्ते लै के, मूसा नालों भी वड्डा। ते माजरत दे नाल कोशिश करिए असी सारे मिल के स्टेज ते और पाक मकाम ते चर्च दे अंदर जुत्ती बाहर ही रहे। मूसा को कहा अपनी जूती उतार दे, ये जगह पाक है। कहाँ था हैकल? पहाड़ पर। आपका खुदा कहाँ है? आपकी हैकल कहाँ है? सोचो जरा, मौका दे रहा हूँ। दिल में। आपकी मदद कहाँ से आएगी? कहाँ है? रुआ। यसु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो अंदर है, वो हमेशा आपके साथ है। आप बेवफा हो जाएंगे, मैं बेवफा हो जाऊंगा, पादरी बेवफा हो जाएगा। यीशु मसीह बेवफाई में भी वफादार रहता है। आप किसको पुकार रहे हैं? आ है। ये एक रवायत चल गई है जी। हर बड़ी अच्छी गीत गाई जाती मीटिंग लीड करने वाले, खुदा मौजूद है, खुदा की हजूरी है। जब कलाम होता है कहते चलो कोरस गाएं जी, कोरस गाते हैं जी। तो जरा पहले स्टार्ट थे ऐसी वो कौन है?
ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਹੋਈ, ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ मीटिंग लीड करना, पहले कहना साउंड सिस्टम पर खुदा दी कुदरत, गाने वाले पर, बजाने वाले पर, ढोलक वाले पर, तबले वाले पर, गाने वाले पर, कवैर पर खुदा की हजूरी है। तो कलाम का मौका तो फिर कहना कि बेईमान ने असी ईमान ही नहीं रखा, वो है। कहता मैं तुम्हें यतीम हमेशा पहले वालों के साथ साथ था, ऐसे कदम बाई कदम साथ 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 नजर आता, कभी आग की सूरत में, कभी बादल की सूरत में, कभी शोलों की सूरत में, और कभी जलाल की सूरत में। तो आपके तो अंदर है, आपके अंदर है, आपके अहद में अंदर है। आपका अहद फ़र्क है। ये कहाँ तक था? इन्होंने सारी दुआएं किसके साथ करनी है जी? ईद के साथ। कैसे? चाँद के साथ। जहाँ जहाँ चाँद है वहाँ वहाँ मूसवी शरीयत का क्या है जी? अहद। जहाँ जहाँ सूरज है, तो जहाँ सूरज नहीं वहाँ ईद और गिनती नहीं। गिनती और कैलेंडर कब शुरू होता है? सूरज और चाँद के सवाब से। तो शरीयत इसलिए 7वें दिन ईद कर लेना, 15वें 14वीं की ईद कर लेना, गिन लेना। तरीके मनाते हैं, आप भी तरीक मनाते हैं। आप क्या मनाते हो? मुझे किसी ने कहा जी आप 25 दिसंबर मनाते हो। मैंने कहा नहीं, हम 25 तारीख की डेट नहीं मनाते। आपको किसी ने कहा? उसने कहा मैंने तो आपके बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं 25 तारीख को। हम 25 तारीख नहीं मनाते, तारीख मनाता है यहूदी। हम तो मनाते हैं मुजस्सम होना, हम तो मनाते हैं मुजस्सम का आना, हम तो मनाते हैं बाप से जो निकल कर आया, जो बाप से आया बेटे का मुजस्सम होना, जो वालिद से तवल्लत हुआ उसे मनाते हैं, तवल्लत मनाते हैं। हम डेट नहीं मनाते, डेट नहीं मनाते। इसलिए आपका अहद फ़र्क है। ये अहद सूरज तक था, महदूद था, इसके वादे महदूद थे। इसके वादे क्या था? अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो मैं तुम्हें मुल्क दूंगा, मैं तुम्हें शहर दूंगा, शहरों की बादशाही दूंगा। अगर तुम मेरा हुक्म ना मानोगे तो मैं तेरी औलाद को तितर बितर करूंगा। कई दफ़ा तितर बितर हुए यहूदी हुक्म को तोड़ने के सबब से। ये दायकियाँ भी देते थे, गीत भी गाते थे, कहानत भी थी। इनकी कहानत फ़र्क थी। अब आप कैसे दुआ करते हैं? वो तो यहोवा का कह के दुआ करते थे, रब्बुल फाज कह कर दुआ करते थे, खुदा कह कर दुआ करते थे। ना मैं यहोवा के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं खुदा कह कर दुआ करने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो इस बात पर हूँ, आपका अहद आपको दुआ करने का तरीका क्या बताता है? आपके यीशु ने बताया। क्या बताया? यीशु ने कहा जब तुम दुआ करना तो कहना यहोवा तेरा शुक्र हो ऐ हमारे। तो शुक्र कादा कर दे? मरुंडा जी बनाया है, मिठे चौल मिक्स करके उत्ते दही पा लो, उत्ते सालन पा लो, पता नहीं लूने मीने मिठे करके खवाई जाओ ना। आज कली कली चीज़ खावांगे, जो चावलों की वारी है तो चावल खवावांगे, जो गोश्त की वारी कली 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 चीज़ हो रही है ना जी। आपके अहद में जब तुम दुआ करना कहना ए हमारे बाप। उनको यहोवा दिया गया नाम, हमें रिश्ता दिया गया बाप। उनको नाम दिया गया, हमें रिश्ता दिया गया। उन्हें आका दिया गया, हमें बाप की शफकत दी गई। आपका अहद फ़र्क है, आपका अहद फ़र्क है। वो अहद महदूद था और उनकी अहद और उनकी बादशाही फ़र्क थी। आपकी बादशाही कौन सी है? ज़मीन की, जहाँ तक सूरज है, जहाँ तक चांद है, जहाँ तक ये मट्टी का सियारा, यहाँ तक आपकी बादशाही है? नहीं, आपकी बादशाही आसमान की, आपकी बादशाही आलमे बाला की, आपकी कुव्वत आलमे बाला की, आपका जलाल आलमे बाला का। उनका जलाल तो कम होता था, घटता था, इसलिए वो सर ढांपते थे। जलाल क्या होता था जी? कम होता था, इसलिए जलाल को क्या करते थे जी? डांपते थे सर को। आप क्यों नहीं डांपते? क्योंकि आपके चेहरों से उसका जलाल मनक्कस होता है और उसका जलाल आपके चेहरों से
منقص ہوتا ہے، ہم اسی ہی جلالی میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ اس قدر جلال چہرے تک آ کر منقص ہوتا ہے۔ منقص کہتے دوسری جگہ پر چلے جانا، آپ کا جلال کم نہیں ہوتا، اس لیے آپ سر نہیں ڈھانپتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے روایت آ گئی خدا نو جلال دو، مارو تاڑیاں خدا نو جلال دین واسطے۔ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے خدا نو جلال دو؟ کوئی ایک حوالہ دو مجھے، بعد میں بحث کر لینا، میں ادھر ہی کھانا کھا کر جاؤں گا جی۔ اب ڈسکس کرنا کہاں لکھا ہے جلال دو، غلط بات ہے۔ بائبل میں کوئی حوالہ نہیں ملے گا اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آپ کے چہروں سے جلال منقص ہوتا ہے، اس لیے ایک گل چلی تو سارے نے کہنا شروع کر چڑا جلال دو جلال دو۔ جلال آتا کہاں سے ہے؟ آپ کے عہد کا جلال کہاں سے آتا ہے جی؟ سیمری کا اسٹوڈنٹ ہے، عالم بالا سے، اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے جی؟ اوپر سے۔ تو ہم نے کیا ٹریک پکڑ لیا ہے، خدا نو جلال دو خدا نو جلال دو، وہ تو بے جلالہ ہے نا۔ اور جلال ہمیں ضرورت ہے، لکھا ہے مسیح نے ہمیں جلال دیا۔ اے باپ، جو جلال تو نے مجھے دیا وہی جلال میں نے انہیں دیا۔ ہمیں جلال دیا گیا ہے، ہم اس جلال کا شکر کرے۔ اسی یسو نو دئی جاننے ہیں، خدا نو دئی جاننے بنا سوچے سمجھے۔ ذرا چلو مینوں نہیں دسنا تے خود جا کے کوشش کر لو کہ کتنے لکھیا ہے، یہ گل اسی کتوں پڑھی ہے بھئی خدا تینوں اسی جلال دین دے، نہیں نہ پڑھی کتے، یہ کتوں لئیے سنی سنائی۔ یہ کیوی گل بڑی میٹنگ لیڈ کرنے والے گاؤندے ہیں، خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی، ایسے لکھا ہے؟ ایسے نہیں لکھا، یہ بھی سنی سنائی ہے، ایسے لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرست۔ خدا تو لکھا ہی نہیں، باپ لکھا ہے۔ ہم نے باپ کے اور معنی ہے، خدا کے اور معنی۔ باپ شفقت دیتا ہے، خدا تو بدروحوں کا بھی ہے، خدا تو فرشتوں کا بھی ہے، خدا تو پرندوں کا بھی ہے، خدا تو زمین کا بھی ہے، خدا تو غیر قوموں کا بھی ہے، خدا تو بت پرستوں کا بھی ہے، خدا تو چین والوں کا بھی ہے، خدا تو جنگلیوں کا بھی ہے۔ باپ کس کا ہے؟ جس نے بیٹے کو قبول کیا۔ آپ کو حق دے دیا گیا ہے، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، آپ کو حق دیا گیا ہے۔ تو آپ کا عہد محدود ہے، باقی عہد محدود ہے۔ آپ کا عہد موسوی شریعت کا جو عہد تھا نا جی، وہ صرف اور صرف شریعت والوں کے لوگ بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہودیوں کے ساتھ تھا، اور شریعت سے پہلے والا نوح کے لوگوں کے ساتھ، پھر ابراہیم والا ابراہیم کے لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ کا عہد کس کے ساتھ ہے؟ چلو حوالہ دیکھ لیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا حوالہ پڑھا ہی نہیں ہے نا۔ ایک 5 منٹ بھائی صاحب، میں ہوں اپنے عہد صرف 5 منٹ سر، میں اسپیشل تہاڈے واسطے فیصلہ آباد میٹنگ چھوڑ کے آیا تے اس مارے مینوں اپنے عہد کی تے گل کرے تے دوجیاں دا ہی دسیا جی، اپنے عہد دیاں 1-2 گل کر کے آمین کر دیا گا۔ متی کی انچی کوئی نہیں، پہلے تسی ٹائم نہیں 12 بجے جاندے سی، اج 10 منٹ لیٹ چل جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں جی۔ 28 باپ ہے میرا خیال جی۔ جی کاش پڑھی ہے 26 نہیں یار، یہ 28 باپ، اور وہ بتھیروں کے واسطے باندھا گیا لفظ کیا؟ ہاں جی 26 27 آیت ہے جی۔ جی پڑھ دیں جی۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور اس کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پہلے عہد محدود اور یہ عہد بتھیروں کے لیے، وہ عہد صرف
शरीयत वालों के साथ, यहूदियों के साथ, फिर नूह के लोगों के साथ, फिर इब्राहिम के लोगों के साथ महदूद, और ये अहद आपका अहद बथेरों के साथ, हर एक कौम के साथ, हर एक कबीले के साथ ये अहद है। इसका कफारा सबके लिए हुआ। इस अहद ने सबको रास्तबाज बनाया और ईमान लाने से फ़ायदा होता है। वो अहद लफ्ज़ों में था, वो अहद पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया, वो अहद मूसवी शरीयत वाला, पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई शरीयत। तो आपका अहद कहाँ लिखा गया? दिल की तख्तियों पर, गोश्त की तख्तियों पर। तुम नए अहद के खादम हो, लफ्ज़ों के नहीं। लफ्ज़ मार डालता है और रूह जिंदा करती। आप रूह के खादम हैं, आप रूह के प्रस्तार हैं। आपने अपने अहद की दुआ करनी है। आपके अहद की दुआ है, बाप तेरा शुक्र, बाप तेरी शुक्रगुजारी। जब हम्द करो तो कहो, ए बाप तेरा शुक्र हो। इफ्सियों के खात्मे पढ़ूंगा नहीं, इफ्सियों 20वां बाब, 20वीं आयत पहले बाब की, इफ्सियों 5वें बाब की 20वीं आयत, पहले बाब की 6ठी आयत। बाप का शुक्र करो, बाप की हम्द करो। किसकी हम्द करो जी? बाप की। और आपको नाम यहोवा नहीं दिया गया, आपको नाम यस्सु दिया गया है, जो नाम ना आसमानों में, ना खला में, ना ज़मीन में, ना ज़मीन के नीचे, एक ऐसा नाम बख्शा गया, वो नाम है यस्सु। आपको रिश्ता बेटा भी दिया गया है और बेटे में सब कुछ रख कर आपको दे दिया गया। बेटा दे दिया तो सब चीज़ें उसमें हैं। जैसे आप गा रहे थे, कलमे में सब चीज़ें हैं, तो बेटा कलमा है, तो कलमे में सब चीज़ें, कलमे ने ही चीज़ों को संभाला हुआ, कलमे में ही चीज़ें हैं, सब चीज़ें उसी में है और उसी के लिए है, उसी के वास्ते है। वो चीज़ें आपके लिए हैं, वो आपके लिए बनाई गई। तो वो मसीह में, तो मसीह हम में सकूनत करता है। हम नए अहद के खादम हैं, रूह के हैं। तो शरीयत लफ्ज़ों में और फ़ज़ल किस में? रूह में। रूह से मुराद क्या? खूबियों की सूरत में। किसकी सूरत में जी? खूबियों। आपके हुक्म खूबियों की सूरत में, उनके लफ्ज़ों की सूरत में, आपके हुक्म रूह की सूरत में, खूबियों। फिर ये लंबा आवाज़ है, इसलिए कभी मौका मिला तो हुक्मों पर से शुरू करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आप नए अहद के लोग हैं, आपका नया अहद है। बाकी अहद जो हैं वो नसीहत के लिए, बाकी अहद अक्ल बख्शने के लिए, आपका अहद नजात देने के लिए, आपका अहद बाप से मिलाने के लिए। खुदा आपको बरकत दे चुका।